Hello learners, welcome back to my YouTube channel Educra. आज आमे another 30 question discussion करिबा on chapter Child Development and Pedagogy OTED paper 2 ପାଇଁ। So without any delay, let's start the session. The first question is, according to Eric Erikson stages of psychosocial development, which one of the following basic virtue does an individual acquire during adolescence year upon successful completion of the stages? Okay. The option are ଅଛି competency, fidelity, purpose, wisdom. ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ fidelity. ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଭର୍ଚୁ ମାନେ କଣ ସଦ୍ଗୁଣ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବେ ଆଡଲସେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ 12 ରୁ 18 ଏଇ ଏରିକ ଏରିକସନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଜ ରେଞ୍ଜ ରେ ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ 8ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ କେତେ ଷ୍ଟେଜରେ କରିଥିଲେ 8ଟା ଷ୍ଟେଜେସ ସେ 8ଟା ଷ୍ଟେଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ ରୋଲ କନଫ୍ୟୁଜନ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆଡଲସେନ୍ସ କୁ ଡିଫାଇନ କରୁଛି ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ସେଲ୍ଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପିରିୟଡଟା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆଫ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଅଫ ଦିସ୍ ଆଡଲସେନ୍ସ ଇୟର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୋଉ ଭର୍ଚୁ ଲର୍ନ କରିବ ସେଟା ବି ସେ କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ କୋଉ ଭର୍ଚୁ ଲର୍ନ କରିବ ଫିଡେଲିଟି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କୁ ଯିବା Next question. In Jean Piaget's theory of cognitive development, concrete operational stages correspond to dashes. Okay. Options कौन अच्छी 5 ରୁ 9 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ 12 ରୁ 18 ବର୍ଷ আচ্ছা ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଚାରଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କେତେ କେତେ ଯାଉଛି 7 ରୁ 11 ବର୍ଷ Next question. Jean Piaget's theory of cognitive development suggested that children move through different stages of mental development. अच्छा केतरा जीन पियाजेट केतरा डिवाइड करथिले एज ग्रुप जो अच्छा जीन पियाजेट केतरा ग्रुप रे डिवाइड करथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चारटा ग्रुप तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following disagree with the idea that intelligence was a fixed trait or regarded cognitive development as a process which occurs due to biological maturation and interaction with environment. Options are contained Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget and Bev Skinner. किए भाबुथिले कि इंटेलिजेंस गोटे फिक्स रेट नुह यह बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आउ एज द्वारा आउ एनवायरमेंट रिलेशन एनवायरमेंट सहित एवं सोशली रिलेशन सहित तार डेवलपमेंट हेई थाए अकॉर्डिंग टू स्टेजेस के कहिथिले जीन पियाजेट द राइट आंसर इज जीन पियाजेट नेक्स्ट क्वेश्चन religion language custom tradition etc from a part of which one of the following अच्छा पिलाने ए सब गुडाको कोथरा हम देखि पारिया पूरे सोसाइटी रे ताले आंसर कोन हबो सिंपली सोशल एनवायरनमेंट कारण ए सब गुडाको कहा द्वारा क्रिएटेड हेची ह्यूमन द्वारा आउ कहा द्वारा रन होची ह्यूमन द्वारा कोथरे इन ए सोसाइटी तो इन ए सोसाइटल एनवायरनमेंट राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन why should the teacher have the knowledge of heredity and environment कोन पई गोटे टीचर पाखरे हेरिडिटी आ एनवायरनमेंट ऊपर नॉलेज रहया दरकार कारण ता स्टूडेंट रो चारि पाखे था एनवायरनमेंट मींस इन ता घरे किबा ता परिवेश रे जो एनवायरनमेंट अछि एवं तार हेरिडिटी ताको जानिया कोन पई निया दरकार कोन पई अच्छा पिलान गोटे मन रखिथाओ गोटे टीचर रोल सबले होची से गोटे स्टूडेंट रो जहा बे माने नीड अछि ताको आइडेंटिफाई करिवो एवं निजर बेस्ट दबो सबले चेष्टा करिवो कि तार स्टूडेंट रो नीड को केमिति से फुलफिल करि पारथो इन डिफरेंट अप्रोच इन डिफरेंट मेथड सो तो राइट आंसर कोन हबो सो दैट द टीचर नो अचीवमेंट पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट हे पारे जानिया पई बाकी एटा राइट आंसर नो so that the teacher knows the spending ability of the student na so that the teacher knows varying need and ability of the children एटा ठीक आंसर कारण वेरिएबल तार नीड्स को एवं तार एबिलिटी को जानिया पई टीचर तार हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सरे जानिया निया दरकार आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन who among the following was first psychologist किए first psychologist to make a systematic study on cognitive development अच्छा cognitive development विषय रे जो cognitive development अछि ताको first किए स्टडी करथिले के डिसएग्री हेई कि कहिथिले कि ना स्टेज अकॉर्डिंग टू एज स्टेज आउ एनवायरमेंटल रिलेशन सहित
आमे तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आहुरी अधिक इंप्रूव करि परिबा इन डिफरेंट स्टेजेस के कहितले जीन पियाजेट तो राइट आंसर कोन हबो जीन पियाजेट फास्ट साइकोलॉजिस्ट थे जे कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय सिस्टमैटिक स्टडी करथिले then one of the following teacher which one of the following helps teacher to provide better learning environment in the school गोटे टीचर केमिति बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करि परिबो गोटे स्कूल रे ता पई कोन कोन दरकार कोडा ए भितरु कोडा ठीक हो नॉलेज ऑफ पेरेंट्स इनकम किसी दरकार नहीं कारण आज सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड रो आमे गोटे स्टूडेंट को जज करियार नहीं सेकंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जानियार अछि डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट आको से डिसेबल हेइथिले भी आमे ताको पाठ पढिया इनक्लूसिव एजुकेशन द्वारा तो एटा भी होबो नहीं नॉलेज ऑफ वेयर ईच स्टूडेंट लिव्स एंड नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस यार किछि दरकार नहीं से को घर रहउसंदी केमिति रहउसंदी तां घर केतरा कमरा अछि जानिया दरकार नहीं कारण हमको स्टूडेंट स्कूल को आछे माने ता गोटे छात्र तल बसी की एवरी स्टूडेंट लर्नर को सहित ताको इक्विटेबल accessible ଆଉ क्वालिटी एजुकेशन देई आमे ताको पाठ पढिया तेनु आंसर कोन यार प्रीवियस क्वेश्चन भी तुम देखिथिलो प्रीवियस क्वेश्चन हम देखिथिलो ना नहीं कि गोटे टीचर जानिया दरकार हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट विषय तो एटी जे आंसर सिंपली अछि नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन to Piaget cognitive development was a progressive recognition of dash as a result of biological maturation and environmental experience कारण ए जो देखुन लाइन गुडा कोन कि तमे ती जीन पेजन से थ्योरी पढ़िथिबो ओके जीन पेजन से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला थ्योरी तमे पढ़िथिबो सिंपली पूरा एमती ही लाइन लिखा हिची केवल सेथुर ही पचारुची बुझला नै एटी कह जी Piaget cognitive development was a progressive recognition of a mental process रो progressive recognition हबो एवं according to biological maturation और environmental experience सहित तारो mental process development हबो the right answer is option number 3 which one of the following is not a stage of cognitive development according to Piaget पिला मन देखि परछो तो जीन पियाजेट रो पाखापाखि 5 रु 6 टा क्वेश्चन आसेल नै कातरे गोटे गोटे ईयर रे तो जीन पियाजेट को भी आराम से भल से पढ़ो तो जते भी सब लर्निंग थ्योरी गुडा अछि जते भी सब लर्निंग थ्योरी गुडा अछि ताको आराम से मन रखि दे के देथिले केबे देथिले कोन देथिले आउ तारो एजुकेशन इम्प्लिकेशन गुडा आराम से मन रखि तो सेतर पक्का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन प्रति वर्ष ओटीटी पडुची तो पियाजेट अनुसार से चारटा स्टेज देथिले फर्स्ट अछि सेंसरी मोटर स्टेज ठीक अछि प्री ऑपरेशनल स्टेज ठीक अछि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ठीक अछि इनफॉर्मल देथिले कि पिलाने ना ना तो एटा होची भूल किंतु क्वेश्चन अनुसार एटा हबो ठीक dash ensure that pedagogical approaches meet educational need of each and every learner पिला माने each and every learner पढासला माने तो माइंड को इंक्लूसिव एजुकेशन पढास्ता दरकार ओके learners learning with different pace and learners with special educational needs group अच्छा से कहछि every learner include हेबे without any discrimination तांको पाखरे स्पेशल नीड जदि तांको दरकार होथिबो एजुकेशनल द्वारा ताको भी फुलफिल करा जिवो ताले एथरो कोटा हे परिबो को पेडागोजिकल अप्रोच रे अफर्मेटिव एक्शन ना सोशल लर्निंग ना इनक्लूसिव एजुकेशन कहि देला प्लाने इनक्लूसिव एजुकेशन थिबाटा थिबो तो जेता बेले तुम देखिबो कि ईच एंड एवरी लर्नर विथ द लर्नर्स विथ स्पेशल एजुकेशन नीड आसुची माने जदि ता पे किछि अप्रोचेस निया हबो सेटा इनक्लूसिव एजुकेशन ही हेथिबो तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 then dash is the memorization of information based on repetition ए पिला आखि मछि कि जदि गोटे पिला बारंबार रिपीटेशन करूची बंदा को मन रखुची मींस रोट लर्निंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रोट लर्निंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ पिला आसी गला एबे प्रति वर्ष ए एनसीएफ हो किंबा एनवाईपी हो किंबा एनईबी हो ओके किंबा एनईबी एथरो गोटे दिटा क्वेश्चन आसुची सबले तो आपको भी छाड़ियार नहीं ओके अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क व्हिच ऑफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन गोटे इंक्लूसिव एजुकेशन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हेबा देखिदो
make provision not restriction are just to need a child ହେଇପାରିବ। ଏବେ use a whiteboard wherever possible। ଏବେ whiteboard ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଏଇଟା ଆଜ ଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଏଇଟା ଆମେ ଆଡ କଲେ ୟୁଜ ଭିଜୁଆଲ ଅଡିଓ ମିଡିଆ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଟୁଲ୍ସ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଆଡ କଲେ କି ଆମେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା। ଦେନ୍ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ କଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରିଟେନସନ ତାଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବଢେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏନସିଏମ୍ 2005 make a provision not restriction adjust to needs of the child means ଆମେ ଏମିତି ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ତିଆରି କରିବା ଏମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତା ନିଡ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତାର ସବୁ ନିଡ୍ କୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର 1। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ରବର୍ଟ କେଗନ develop a theoretical framework that posited dash level of meaning making। ओके ଏବେ ରବର୍ଟ କେଗନ କରିଥିଲେ ସେ 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସେ 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରେ 5ଟା ଟାଇପ କୁ डिफाइन କରିଥିଲେ ସେ 5ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବା ଅର୍ଡର କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଥାର୍ଡ ଅର୍ଡର फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर से फास्ट ऑर्डर से कहते अर्ली चाइल्डहुड को डिफाइन करते देन सेकेंड ऑर्डर रे कौन करते से सेल्फ सेंटर्ड रूल बेस्ड थिंकिंग को एम्फासिस देते थर्ड ऑर्डर रे सोशलाइज्ड माइंड को एम्फासिस करते फोर्थ ऑर्डर रे से सेल्फ ऑथराइजिंग माइंड को डिफाइन करते एंड फिफ्थ रे से सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग माइंड को डिफाइन करते तो ये पांचटा टिके ओवरलुक करदेबे आपण ऑनलाइन थ्रू जाकी ठीक अछि। नेक्स्ट दिया inclusive education is committed to dash physical social attitudinal barriers से कहछि ए जो गोटे inclusive education दबा पई गोटे पिला को गोटे मींस पिला मानकर inclusive education पई जदि physically socially आ attitudinally किसी barrier आछि ताहले ता पई inclusive education कोन कम्युनिकेट करछि एनहांस करिया पई ना ताको मल्टीप्लाई करिया पई ना रिड्यूसिंग करिया पई हां ताकू केमति हमें रिड्यूस करि परिबा तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। which one of these school of thought co school of thought is associated with the concept of learning as meaning making अच्छा पिलाने learning as constructivism learning as meaning making means এটা কোথায় হচ্ছে constructive history ऑप्शन नंबर 1। Next question which of the following can a teacher use to address the learning needs of the visual impaired students यदि गोटे visually impaired student अछि ताहले ता पई आमे को लर्निंग मेथड बा को लर्निंग नीड्स को आमे ताको फुलफिल करिया पई करि परिबा। अच्छा पिला माने एबे कत ऑप्शन नंबर 1 देछि हियरिंग एड्स गोटे पिला को देखा जानी ता पई आमे हियरिंग एड्स यूज करिया कि ना ब्रेली इक्विपमेंट हां तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छा पिला देखो तरी किसी दिरा को जो डिस्ट्रैक्शन देछि विजुअल बोर्ड गोटे पिला को विजुअली इम्पेयर्ड अछि से देखि पार नै ताबे विजुअल बोर्ड दरकार कि ना ना असिस्टेंट रीडिंग मींस ताको जने सुनुथो पढेकी में ता पई जने पढुथो बुझो जना नै मींस ताको सुनुथो पढेकी तो एटा बेसी हेल्पफुल होबो कि ना ना किंतु यदि गोटे ब्रेली इक्विपमेंट थिबो से पिला निजे निजे पढि पारिबो निजे निजे से ब्रेली को टच करके तार लैंग्वेज द्वारा से पढि पारिबो तो बेस्ट कोड हबो ब्रेली इक्विपमेंट तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which then physical inclusion include which one of the following ए भितर कोडा physical inclusion पई यूज हबो structure and resources social groups cultural groups racial group तो पिला भाबो टिके physical inclusion माने कोन आनसिन आपण the practical and the structural arrangement that enable the equal and accessible participation of all the individual means सब individual को आमे समस्त प्रकार structural आ practical resources जोगाइबा जहा फल से इक्विटेबल बा समस्त वैल्यूड फील करिवे जेमिति कि जो मान को बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर तय करा मींस गोटे अंध पिला केमिति जाई परिबो गोटे फिजिकली हैंडिकैप्ड पिला भी रैंप साहाय्य जाई परिबो एलिवेटर लागि परिबो एवं एक्सेसिबल टॉयलेट्स बोथ मेल और फीमेल मान पई तांको मान जो माने दिव्यांग अछंती जो माने ट्रांसजेंडर अछंती तांको पई स्पेशल टॉयलेट हबो तांको पई स्पेशल
कॉमन रूम दिया हबो तांको पई डिफरेंट मेथड यूज करा हबो पढ़िया पई जा फल से माने कोन करबे ना निजको से भीतर इनक्लूडेड भाबिबे तांको एक्सक्लूड करा होनी बोली भाबिबे नाही तो फिजिकल इनक्लूजन कोन हबो ना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स को डिफाइन करिवो तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू whom एवरी फंक्शन इन पिलान देखो इस सेम थ्योरी ने कि ये पूरा देखो पूरा लाइन रखा है जी बस मींस हम एजुकेशन पैटर्न एमिति है जी कि तुम खाली माने कॉन्सेप्ट ही मन रखियार अछि बुझन तुमको एठे से रोड मेमोराइजेशन ही करिया को पड़िबो कारण ये जो थ्योरी है देखो ना पूरा एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट appears twice fast मीन्स कहूची गोटे कल्चरल डेवलपमेंट गोटे चाइल्ड जेतले हबो सेटा दी थर हुए फास्ट केतले हुए जेतले सेटा सोशल लेवल रे मीन्स इंडिविजुअल तार सोसाइटी सहित मिसे सेतबेले सेकंड रे केतले हबो जेतबेले से निज सहित मीन्स इंटर साइकोलॉजी निज सहित निजे निजे अनुभूति करी शिखिबो तो फास्ट सोसाइटी रो तापर निजे ठीक भूल जानि शिखिबो दीटा गोटे इंटर साइकोलॉजिकल गोटे इंटर साइकोलॉजिकल तो ये सेम थ्योरीटा किए देथिले ना ले भेगोस्टी किए देथिले ले भेगोस्टी तो पिला माने गोटे कहि दउछ तुमको ये जो कोटा है कि ये जो स्टेटमेंट है कि एटा ले भेगोस्टिन करो सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कोर प्रिंसिपल बुझन तो एटा देखो डायरेक्ट तुम पचार दउची तो ले भेगोस्टी हो जीन पियाजेट हो बीएफ स्किनर होंतु एल थ्रोनकाई होंतु तापरे और हो गले हमर रॉबर्ट केगन होंतु एरिक एरिक्सन होंतु एमानकर से जो लर्निंग थ्योरी गुडा नाको तुमको खाली मन रखियार अछि जा फल तमे गोटे भी क्वेश्चन छाड़ी के आसीबनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा dash hold that the people try to determine why people do what they do and that is interpret causes and causes to an event or behavior option कौन देछि classical conditioning attribution theory experimental learning operant conditioning अच्छा पिलाने क्लासिकल कंडीशनिंग कोन कहूची क्लासिकल कंडीशनिंग कहूची गोटे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी मींस गोटे स्टिमुलस दबा जोटा को आमे रेस्पॉन्स तापे जोरा चाहूचे सेटा को पाइबा बुझला ना नहीं मींस एटा के देथिले इभान पावलोव देथिले एथे से कोन कहथिले स्टिमुलस रेस्पॉन्स केमिति काम करूची से गोटे कुकुर को नेकी एक्सपेरिमेंट करथिले तो एथरे से देखिथिले आमे गोटे बेल बाड़िया द्वारा जेतेबेले धीरे धीरे गोटे सठिक टाइम रे बेल बाड़ौचे किंतु खाया नदेले भी से डॉगटा सालिवेशन करूची माने गोटे स्टिमुलस जोटा ता पई रेस्पॉन्स दवा पई नथिला जनरल स्टिमुलस थिला सेटा स्पेसिफिक स्टिमुलस को कन्वर्ट हे जाउची एटा हले नुवा आंसर एट्रिब्यूशन थ्योरी कोन कहितला एट्रिब्यूशन थ्योरी कहितला कि केमिति लोक माने बा इंडिविजुअल एक्सप्लेन करसंती द कॉज ऑफ बिहेवियर को बुझला कॉज ऑफ बिहेवियर बोथ निज कॉज ऑफ बिहेवियर एंड अदर्स कॉज ऑफ बिहेवियर को एक्सप्लेन करसंती देन सेकंड थर्ड कोन कहजी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कोन बिलाने आमे स्टूडेंट बा लर्नर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देकी ता प्रैक्टिकल लाइफ से ताको रिलेट करिकी ता प्रैक्टिकल लाइफ से ताको मिसेकी पाठ पढेबा ऑपरेंट कंडीशन कोन कहूची ना रिवार्ड आउ पनिशमेंट जोरा कि बीएफ स्किनर देथिले तो एटा बिन हो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बिन हो तो राइट आंसर कोन हो एट्रिब्यूशन थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन पिलाने ये आपन भाई किछि सजेशन आपको पढ़ी देबे मींस जो थ्योरी अछि एट्रिब्यूशन थ्योरी सेटा दीटा अछि ओडे इंटरनल ओडे एक्सटर्नल इंटरनल मींस बिहेवियर ड्यू टू पर्सनल ट्रेड मोटिव इंटेंशन एग्जांपल सी फेल बिकॉज़ सी लेजी से फेल हला कोन पई माने से लेजी से पाठ पढुथला किंतु यदि से फेल हला ड्यू टू द एग्जाम ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर मींस से पढ़ी तो जाइथिला जेति पढ़िया कथा बाकी एग्जाम पेपर बहुत हार्ड थिला बुझला नै तो एटा होची एक्सटर्नल फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा who classified domain of human learning into three parts cognitive affective psychomotor as educational objective ऑप्शन कौन देछि बेंजामिन ब्लूम डेविड आर काठवाडी लोरिन एंडरसन नॉर्मन एल वेब अच्छा पिला माने समस्ते जो भी बीड करथिबे केबा टीचरशिप लाइन थिबे सिटी बीड करथिबे सेमाने जानिथे श्योर जानिथे ब्लूम्स को तो समस्ते चिन्हिथिबे
से फेमस कौन पाई थे तांकर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी द्वारा से फेमस होते ଏଇଥିରେ ସେ ତିନିଟା କଗ୍ନିଟିଭ ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇକୋମୋଟର କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ସେ କାହା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା ନଲେଜ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଦେନ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ରେ ସେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଥିଲେ ଫିଲିଂସ୍ ଇମୋସନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଉପରେ ଦେନ୍ ସାଇକୋମୋଟର ଯୋଉ ଡୋମେନ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ୍ସ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଥିଲେ ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ थ्री क्लासिफिकेशन डोमेन किए करथिले बेंजामिन ब्लूम नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच लर्निंग प्रोसेस आर लर्नर्स एक्टिवली इन्वॉल्व पिला माने जदि लर्नर माने एक्टिवली इन्वॉल्व संती ताले एटा को सेंटर हबो लर्नर सेंटर तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 लर्नर सेंटर अप्रोच Dash is defined as a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives. Options are education, evaluation, facilitation, and curriculum designing. ପିଲାମାନେ ଏଇଟା क्वेश्चन ଆସିଛି evaluation ରୁ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ evaluation ଆଚ୍ଛା evaluation ଆଉ assessment ବିଷୟରେ ଦିଟା common difference କଣ ନା ନା evaluation ଟା ଗୋଟେ broader concept ତା ଭିତରେ କି ଯାଉଛି assessment assessment ଟା କଣ ଗୋଟେ process of collecting data ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ systematic data କୁ collection କରିବାକୁ ହଉଛି assessment କୁହାଯିବ ଏବେ ସେ data କୁ ଆମେ examine କରିକି analysis କଲେ ତାକୁ interpret କଲେ gradation କଲେ अपग्रेड कले पिला मानकु सेटा कोथरे पळासिबो इवैल्यूएशन रे तो इवैल्यूएशन तो राइट आंसर कोन हबो इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन रो गोटे सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा तो डाटा को एनालाइज करबा और इंटरप्रेट कले सेटा इवैल्यूएशन पळो जदि ओनली डाटा कलेक्शन करा हो जदि को हबो ताले सेटा कोथरे जिवरी एनालिसिस रे तो राइट आंसर कोन हबो इवैल्यूएशन एबे देखो पिला पळासे तो प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक गैदरिंग इंफॉर्मेशन कहितली प्रीवियस स्लाइड रे कहि आपनको कि जो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा कोन कहा जीवो ए जो इवैल्यूएशन गोटे पार्ट कहितली ताले त कोन हबो सिंपली ऑप्शन नंबर 1 असेसमेंट the purpose of dash is necessarily to improve the teaching learning process by being able to review the objectives that have been identified for different stages of learning options kon dechi analysis assessment extended learning discovery learning तो पिलाने राइट आंसर कौन हबो असेसमेंट कौन पाई ना असेसमेंट को होची ना हमें प्रत्येक चाइल्ड रो इंडिविजुअल डिफरेंस को जानिया हेले से डिफरेंट स्टेजेस रे केते डेवलपमेंट करूची एवं ऑब्जेक्टिव केते फुलफिल होची हमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव गुडा को ए सब को जानिया हेले हमको असेसमेंट करिया को पड़िबो बुझला असेसमेंट केते प्रकार पिला माने चारि प्रकार कौन कौन फॉर्मेटिव समेटिव प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक बुझला नेक्स्ट दिया Brunner's dash stage involve the encoding and storage of information where a direct manipulation of object occurs without an internal representation of the object अच्छा पिलाने ब्रुनर केता स्टेज देथिले तीनटा कोन आइकॉनिक सिंबॉलिक एंड इनेक्टिव ओके इनेक्टिव टा कोन हथिला गोटे एक्टिविटी बेस्ड आइकॉनिक टा कोन विजुअल बेस्ड सिंबॉलिक टा कोन गोटे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बा सिंबल बेस्ड बुझला फार्मूला बेस्ड एबे क्वेश्चन कोन पचारि हमको क्वेश्चन कोन होची जदि हम कोनसी गोटे इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करूचे where a direct manipulation of object occurs without any internal representation of object ताले यार आंसर कोन हबो एटा को स्टेज रे पळाबो इनएक्टिव स्टेज रे जीवो हरी जे हम कोनसी ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग द्वारा किबा तार विजुअलाइजेशन न करी भी आमे से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेशन करि पारुचे ताले सेटा को आमे केवल कोथरे करि परिबा ना एक्टिविटी बेस्ड बा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग द्वारा करि परिबा तो एटा कोथरे पळासिबो इनएक्टिव राइट आंसर कोन हबो पिला माने inactive. Next question. Who among the following viewed learning as the process of meaning making? Learning as a process of meaning making, constructive learning, ये सब किए देथिले लेव अगस्टी बुझला पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The curriculum assumes that the knowledge is transmitted directly
from those who have it to those who don't have। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡା କଣ କଣ ଦେଇଛି? ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେ କହିଛି କି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଫ ନଲେଜ ଡିରେକ୍ଟଲି from those who have, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, to those who don't have। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଦିଟା ସେଣ୍ଟରରେ ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ କଣ ହବ? ପ୍ୟାସିଭିକ ବସିବ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ସେ କହିଥାନ୍ତେ କି କୌଣସି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ହଉଛି କିମ୍ବା ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାସିଭ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାନ୍ତା ଅବଭିୟସଲି, ନୋ ଡାଉଟ। ବାକି ଏଇଠି ସେ କହିଛି କି ଟିଚର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ନଲେଜ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆମ ମେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି। କାହା ପାଖକୁ ଦିଆ ହଉଛି କିଏ ପ୍ୟାସିଭ ଅଛି? ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏଇଠି ବି ସତ, ନୋ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରାଯାଇଛି ମୋର କାହା ଉପରେ? ନା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନଲେଜ ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉପରେ। ବୁଝୁଛ ନା? କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଟିଚର ପାଖରେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କରିକୁଲମ ଟା ଆଜୁମ କରିଛି କି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଉପରେ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନଲେଜ ଉପରେ ମେନଲି ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଛି। ଯଦି କୌଣସି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଇଥାନ୍ତା? ଟିଚର ସେଣ୍ଟରରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ next question, learning objective of which one of these are observable? Can provide learning evidence and can recognize। the options ଗୁଡାକ contact sorry content centered approach, subject centered approach, learner centered approach, teacher centered approach। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ବିକଜ ଏ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ବିହେଭିୟରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିପାରିବା ଲର୍ନିଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ନିଂ ହଉ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ହଉ, ସେମିନାର ହଉ। ଦେନ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରିବା କି ହଁ ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଡିସାବିଲିଟି, ଏଇ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Dash refers to the steps taken to reduce the degree of freedom in carrying out some tasks so that the child can concentrate on difficult skill she is in the process of acquiring। means ଏଠି କଣ କହୁଛି? the steps taken to reduce the degree of freedom in carrying out some task। ଆମେ ତାକୁ ତାର ସେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା, ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଇକି ଆମେ ତା ଟାସ୍କକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ମୋର ଡିଫିକଲ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛି କି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ହାଲକା ହାଲକା କଣ କରିପାରୁଛେ? ହେଲ୍ପ କରିକି ତାର ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁ କମେଇ ପାରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଲେ, କିଛି କ୍ଲୁ ଦେଲେ, କିଛି ହେଲ୍ପ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ ହେଲା ତାର ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି? ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ପୁଶ ଦଉଛେ। ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ହେଇପାରିବ? ଡିସ୍କଭରିଂ ରେ, ସିମ୍ବଲିଂ କୋଡିଂ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହିଲା ମାନେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ପୁଶ ଦବା, ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ। ओके पिलाମାନେ, थैंक यू। आज ପାଇଁ ଏତିକି। मिलते हैं अगले क्लास। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। ହଁ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢୁଥାଅ। ଆପଣ ଆଜି ତ କ୍ଲାସ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଥିଓରି ଉପରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ NYP, NEP, NCF ର ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହଉ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ହଉ, ଲର୍ନିଂ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆସୁଛି। ତ
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଏଇ ଯୋଉ CDP ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ବାକି ଖାଲି ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମେମୋରାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ସତ, ଆମକୁ ମେମୋରାଇଜ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ଓକେ, ତ ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍ ଲର୍ନର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।